Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Morning greetings to all of you. Dear teachers and students, first of all, I would like to thank school management who considered me and giving me a chance to present speech in front of you. Thank you. Respected all, my name is Liaquat Ali Shaikh. Currently, I am working at Khushali Microfinance Bank Limited as branch manager. I have 10-year experience in a banking sector. Dears, purpose of speech is nothing about anything else. It is just about history, struggles, boundaries, ups and downs in my life which I face during my life. Respected all, a very well saying that nothing is gained without pain. And if I can say that my life is all about struggles which stands on that saying, then it is not untrue. Dear all, I want to share that I belong to in a purely rural-based village area. My place of birth is 4412, near about 15 kilometers away from Mukada city. I want to put a thing that my home is 4 kilometers away from my village, that called Dera. In Punjabi, it is called Dhari. My home is inside our crops, in our lands, where no concept of electricity. In the age of 4 years, my father has been died. This is a very sorrowful thing for me and for my family. We are 2 brothers and 1 sister, and at our village, no concept of parents to educate their children. They all are engaged in agriculture and livestock professions. Same my family. My mother has initiated the step and my admissions at government primary school, which is 4 kilometers away from my home, and कह सकते हैं कच्ची सड़क जो है वो हमारे स्कूल को जाते थे, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया. तो डियर ऑल, I would like to explain that feelings, no any hesitation in explaining that the concept of education is also rare in the area, and members of our family was not well interested in focusing of education's parameters. Instead of all issues, me and my brothers and one of my cousins are interested in education and got admissions. Dear all, with the grace of Allah, I have passed my primary 5 standard examination with 90% marks and got scholarship from government. It was a very pleasure for me and my family that I got scholarship, and I have started proper study from that point. When I was in class 6, I have saved my scholarship amount and purchased a second-hand bicycle with the amount of ₹600. And when I was going to school, elementary school, which is around about 10 kilometers away from my home. At that time, still electricity is not available in that town where I was living. Most of the time, I did my homework in the daylight, but when the work is over, then I will use candles, lanterns, या और पंजाबी में दीवा कहते हैं, जिसके जो केरोसिन ऑयल से चलता है और जो है
उसकी बहुत मिड छोटी लाइट होती है जिस पे मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी. I have passed my middle board standard exam with 95% marks and also got scholarship in the class 8. At that time, no concepts for me, and now I have a single guideline to choose subject. I just follow my other villages fellows who got admission in science subject. I copy them and got admission in government Satluj High School in a science subject from 9th class. So I would like to share that I have got 79% marks in my matriculation examination, and when I have passed matric exam, then I have no awareness about next career path or studies subjects. So I have follow my class fellows who took admissions in Government Commerce College for DCOM. So I have copied them and got admission in DCOM. I have passed my DCOM, then I will got admission in a private college for BCom, and I did my BCom in 2002. Till BCom, still I want to point out that electricity is not available there. I am very happy when I have passed BCom examinations, and I think that is point to start my professional career. I have searched different jobs ads from newspaper. Luckily, I am successful to got a job at a private company which situated at Lahore as office assistant in 2002. I think October 2002. I have started my career there as office assistant, and after 1 year I was promoted as accounts officer. I have continued that job for 4 years, and after 4 years in 2007 I have got a job at Khushali Microfinance Bank Limited as cash officer cashier. Me and my families were very happy on this job. I have struggles more and more, and after 3 years I was promoted as operation manager and transferred to Sahiwal. In that time I have also took admission in Allama Iqbal Open University and did my MSc Economics with 72% marks. After that, when I was promoted as operation manager, I feel that the banking industry needs business educations. So I have got admission in MBA executive weekend classes at Superior University Sahiwal. Alhamdulillah, with the prayers of my parents and support of my families, my colleagues, my friends, I have passed MBA executive in banking and finance in 2017, and I was promoted as branch manager at Kasur. Me and my family transferred to Kasur and start a new career. Alhamdulillah, I have struggled more and more and achieved all my targets which are relating to my job. Bank has gifted me a new Mehran in 2018. Furthermore, I want to explain that bank is also financing me for my home, and I have purchased a brand new homes at Okada. Now I am settled at Dipalpur Chowk, Okada, at my own home. This is all about you struggles, hard workings, and support of my family. And most of the important thing is
prayers of my mothers. So I want to say that struggles is a continuous journey, not a destinations. If you work hard, then Allah will provide you that results and you will earn fruits of that struggles. Thank you very much. So जैसे आपने कहा कि ग्रेजुएशन एट दैट टाइम आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जी जी, तो आप तो बड़े अच्छे कैंडिडेट थे पीएम सीएमशिप के लिए पंजाब के लिए, तो आपने अपने सीवी फॉरवर्ड क्यों नहीं किया आपने? मैं बताना चाहता हूँ सर कि बेसिकली ओनली हमारी ही फैमिली जो है वो 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर विलेज, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाइंस गुजर रही हैं, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर हमारी अपनी ही ज़मीन के अंदर जो है हमारा डेरा है, वहाँ पे सिर्फ हमारा ही एक घर है। तो हमने सेवरल टाइम जो है इसको टेकअप किया गवर्नमेंट के साथ, बट हम इतने फिनंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि हम अपने बिहाफ के ऊपर अपने ट्रांसफार्मर और बाकी जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं उनको जो है ना वो पूरा कर सकें, और गवर्नमेंट ने हमें इसलिए फैसिलिटेट नहीं किया कि सिर्फ 1 मीटर ही वहाँ पे जो है ना वो लगना था। सर बैंकिंग एज ए कैरियर को आप बच्चों को कैसे बताएंगे कि बैंकिंग एज ए कैरियर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इस, नो डाउट कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, बट ग्रोथ रेट जो है इसमें बहुत ज़्यादा है। तो आई वांट जस्ट अ पर्सनल थिंग, आई हैव स्टार्ट माय करियर विद ₹10,000 पर मंथ सैलरी, एंड आफ्टर 10 years अल्हम्दुलिल्लाह माय सैलरी इज़ 100K। दैट्स अ वेरी मोटिवेशनल एंड जो है अट्रैक्टिव थिंग, बट कंपटीशन इज़ सो हाई एंड यू हैव टू स्ट्रगल मोर एंड मोर टू अचीव योर बेंचमार्क। 10 साल में आपकी सैलरी 10,000 से 1 लाख तक अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास कॉम्प्लीमेंटेड गाड़ी है, ब्रांड न्यू मेहरान है, और सेकंडली ये है कि बैंक ने मुझे एक 5 मरले का डबल स्टोरी घर भी बना के दिया हुआ है, वो जो कि मेरे BM के एंटाइटलमेंट पैकेज में है। तो अगर आपको दोबारा कैरियर की अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप बैंकिंग में दोबारा जाएंगे या चेंज करेंगे? मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी बैंकिंग सेक्टर में ही, अलाइड बैंक में मेरी एज ब्रांच मैनेजर जॉब हो गई थी, बट सबसे जो बेस्ट थिंग हमारे बैंक की है कि ये अपने ही एम्प्लॉइज़ को आगे लेके चलता है। हर 2.5 ईयर्स के बाद हर एम्प्लॉई जो है वो नेक्स्ट पोजीशन के लिए क्वालिफाई करता है, अगर वो टेस्ट और इंटरव्यू में प्रूव करता है कि ही इज़ द राइट पर्सन फॉर दैट जॉब। तो दिस इज़ माई 4th स्टेप प्रमोशन फ्रॉम कैशियर टू ब्रांच मैनेजर इन 10 years। Yes, guys. मेरे फादर इनिशियल स्टेज पे ही उनकी डेथ हो गई थी और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। मेरी मदर की विश थी कि जो है मैं अपने बच्चों को पढ़ा के अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को जो इम्प्रूव कर सकूं। Females are encouraged for banking job. This is our office job and 9 to 5 timing. I think it is most beneficial for females as well as males. लेकिन 9 to 5 तो आई थिंक स्टैंडर्ड होता है ना, लेकिन उसके बाद जो क्लोजिंग और ये सब। बिल्कुल मिस सही कहा आपने। 9 to 5 जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सारे बैंकों को कस्टमर टाइमिंग के लिए कहा गया है। आफ्टर डैट क्लोजिंग होती है और क्लोजिंग भी नॉर्मली 6:30 तक हो जाती है। और जो फीमेल्स जो कैश में काम कर रहे होते हैं उनके लिए 1 आवर और 1.5 आवर्स एक्स्ट्रा स्पेंड करने होते हैं। अदरवाइज जो कस्टमर सर्विसेज डेस्क है वो 5 PM पे ही क्लोज़ हो जाती है, क्योंकि कस्टमर्स जो है वो ऑल जो एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है टिल 5 PM। स्टूडेंट्स को आफ्टर मैट्रिकुलेशन किन सब्जेक्ट्स की तरफ जाना चाहिए बैंकिंग के लिए? बैंकिंग में कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडी है, आपकी ICOM है इंटर लेवल पे, या फिर DBA है, सेकेंडली BCom BBA एंड MCom MBA। बिजनेस स्टडी है बेसिकली प्योरली कॉमर्स बेस्ड स्टडी है। इसमें बेसिकली ट्रांजैक्शंस ही हो रही होती हैं, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट्स, इन 2 चीज़ों को लेके ही जो है वो सारी की सारी बैंकिंग हो रही होती है, और ये 2 बेसिक कंसेप्ट्स हैं अकाउंटिंग में।
सो डिजिटलाइजेशन के बाद जैसे चीज़ें डिजिटल हो गई उसके बाद बैंकिंग में क्या चेंज आया है? जी जी, बैंक टोटल बैंकिंग अब डिजिटल हो गई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एटीएम मशीन से भी सारी ट्रांजैक्शन प्रोसीड हो सकती हैं। आपकी यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट हो सकती है, अदर आपकी जितनी भी पेमेंट्स हैं आप एक बैंक के अकाउंट से पूरे पाकिस्तान के तमाम बैंकों में अपनी फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको ब्रांच विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप अपने मोबाइल ऐप ओपन करते हैं और अपने फंड ट्रांसफ़र कर लेते हैं। Sir, why you just choose banking career? Because after completing your study like MSc, MBA, executive, you have so many other options in this career, in this after completing your study. Like अगर आप कॉमर्स फील्ड में अदर ऑप्शंस भी आती हैं, आप अपनी बैंकिंग से जो आपकी ये करियर है इससे इतना सेटिस्फाई हैं, मल्टीनेशनल किसी बहुत अच्छी कंपनी में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे? हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ जो है बैंकिंग सेक्टर इज़ आल्सो अ वाइड इंडस्ट्री। इसमें भी आपके पास बेशुमार ऑप्शंस हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट को चूज़ करना चाहते हैं, आपका बेसिक इंटरेस्ट कौन से डिपार्टमेंट में है। तो दिस इज़ नॉट अ स्मॉल इंडस्ट्री। इसका स्कोप इंटरनेशनली और इंटरनेशनली बहुत स्कोप है इस इंडस्ट्री का, और हमारे बहुत सारे लोग जो है वो जिनका एक्सपीरियंस गेन करते हैं नेशन वाइड एंड देन दे सर्व इंटरनेशनल बैंकिंग सेक्टर्स। सो बैंकर्स के बारे में मशहूर उनकी प्राइवेट लाइफ नहीं होती। This is in something correct because in seasonal activity or during closing seasons like December and June ends aggressive targets होते हैं जिनके बिहार पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करना होती हैं। तो पीपल सेज के बैंकर्स की जो पर्सनल लाइफ नहीं होती, एक्चुअली ये नहीं है। अगर आप अपने एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज रखते हैं और अपनी सारी एक्टिविटीज़ को पेंडिंग नहीं करते, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है कि बैंकर्स की पर्सनल लाइफ नहीं होती। सारी सोशल एक्टिविटीज़ आप कर रहे होते हैं। नहीं, ये तो जस्ट एक कंसेप्ट है। कह सकते हैं कि जो लोग बिल्कुल अपने डे टाइम में फ्री रहते हैं ज़्यादातर, या फिर मोबाइल यूज़ करते हैं या फिर दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, अपने कोर फंक्शंस पे फोकस नहीं कर पाते किसी भी वजह से, तो उनके लिए डेफिनेटली ये है आपने अपनी डेस्क तो क्लोज करनी है, अप टू डेट तो रहना ही है। अप टू डेट रहना ही बैंकर की एक क्वालिटी है और जॉब डिस्क्रिप्शन है। अप टू डेट तो आपको रहना ही है। आप अपना काम पेंडिंग नहीं कर सकते बैंकिंग सेक्टर में, बट ये है कि अगर आप स्टार्ट ऑफ द डे से ही स्मूथली अपने फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म करते रहते हैं तो देन आपको लेट सेटिंग की ज़रूरत नहीं पेश आती और आप जो है वो टाइमली अपनी डेस्क क्लोज करके मूव कर सकते हैं। अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी लाइफ जी, को किस तरह से बैलेंस रखता है। एग्जैक्टली इनका कोई बेसिक स्पेसिफिक आवर्स नहीं है कि 9 o'clock इनका ये रूल्स है कि भाई इनकी टाइमिंग है ये? नहीं, टाइमिंग 9 to 5 है जी, 9 AM to 5 PM विद 1 hour लंच ब्रेक। अच्छा, आपके ट्रेनिंग्स का क्या स्केड्यूल होता है? जी, कितने टाइम के बाद ट्रेनिंग्स दोबारा करवाई जाती है? हमारी ट्रेनिंग डेवलपमेंट का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू रहता है। इसमें हमारी समटाइम्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। प्रोडक्ट्स से मुराद डिफरेंट नेचर्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट्स होते हैं, माइनर्स अकाउंट्स होते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अकाउंट्स होते हैं। तो जब कोई नई प्रोडक्ट आती है बैंक में देन उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। रिसेंटली आवर बैंक शिफ्टेड ऑन Temenos 24 सिस्टम एंड दिस इज़ द लेटेस्ट systems which is used by banking industry. Our fourth bank which is going to use Temenos 24 system. तो इसके लिए हमारी काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स हो रही हैं। हमारे स्टाफ इस्लामाबाद हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट का जो सिलसिला है ये बैंकिंग सेक्टर में कंटिन्यू रहता है। इससे आपकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो रही होती हैं और आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है और आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है ये भी इन्हेंस हो रही होती है। सर, आप नए बैंकर्स को क्या प्रेफर करेंगे कि उन्हें अपने आप में कौन सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है,
तो जो सबसे बड़ी क्वालिटी एक बैंकर के अंदर होनी चाहिए जो मैं समझता हूँ वो होनेस्टी है और देन कस्टमर सर्विसेज है, क्योंकि कस्टमर से ही बैंकर्स हैं, कस्टमर हैं तो हमारी एग्जिस्टेंस है, कस्टमर नहीं है तो फिर हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो हमें होनेस्ट होना चाहिए, कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। तो कस्टमर सर्विसेज वाले तो ये कहते हैं कि पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ योर कस्टमर देन यू विल बी एबल टू क्रिएट क्वालिटी सर्विसेज। तो क्वालिटी सर्विसेज जो हैं वो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए कस्टमर्स को। कंपटीशन है हर लेवल पर, हर इंडस्ट्री में कंपटीशन है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे किसी भी इंडस्ट्री में रहते हुए तो देन यू विल बी सक्सीडेड इन योर रोल। अच्छा, रिसेंटली आप अपने बैंक को भी कहाँ देखते हैं एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स? जी, बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाली बैंक हैज़ अवार्डेड बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक ऑफ पाकिस्तान इन 2018 अक्टूबर्स। हमारा बैंक जो है वो बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक के तौर पर जो है हमें अवार्ड मिला है। बेसिकली माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का जो लिमिटेशन है वो है फाइनेंसिंग की तरफ, लोन्स में हमारी लिमिटेशंस है, लेकिन कमर्शियल बैंकिंग में, जनरल बैंकिंग में हमारी कोई लिमिटेशन नहीं है। हम बिल्कुल कमर्शियल बैंक हैं, अकाउंट्स हैं हमारे पास डिफरेंट नेचर्स के, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, इसमें सेविंग अकाउंट्स हैं हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें कमर्शियल बैंक के हिसाब से ही हैं। बट जो कमर्शियल बैंक में सेम चीज़ों को ही आपस में कंपेयर किया जा सकता है। अगर हम माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारा बैंक जो है वो बेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और अगर हम कमर्शियल बैंकिंग की तरफ की बात करते हैं देन जो कमर्शियल बैंकिंग में लीडर हैं उसमें अभी लास्ट ईयर मिज़ान बैंक को जो ना वो बेस्ट बैंक को कमर्शियल बैंक का जो ना अवार्ड मिला है इस्लामिक बैंक का। तो ये है। सर, अगर आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हों और आपको मौका मिले, ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म को मिलेगी अपॉर्चुनिटी सर्व करने की, तो आप अपने इलाके को किस तरह से सर्व करेंगे? अपने एरिया में कौन सी चीज़ें हैं जो लाना चाहेंगे बिजली और एजुकेशन के अलावा? जी जी, वो तो ले ही आएंगे ना ऑटोमेटिकली। डेफिनेटली। तो बेसिकली मैं लोगों की पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड है वो अप करूँगा और लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन है यही हमें, इससे ही सारी हमारी सक्सेस है, इसी से ही जो है वो हमारी कामयाबी है। गर्ल्स के लिए जो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में तो सो मेनी डिपार्टमेंट्स हैं लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडियन ब्रांच मैनेजर्स, कैशियर, तो कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो गर्ल्स के लिए सिक्योर है? सारे डिपार्टमेंट्स ही सिक्योर हैं। फ्रंट पे इंश्योरेंस के लिए भी गर्ल्स बैठी होती हैं, वहाँ पे पब्लिक का वर्क बहुत ज़्यादा होता है। देखिए पब्लिक डीलिंग तो है बैंकिंग सेक्टर में, टोटल है ही पब्लिक डीलिंग। कंपटीशन है, पब्लिक डीलिंग तो है, बट ऑल डिपार्टमेंट्स सिक्योर्ड हैं। इनिशियल जब आप स्टार्ट करते हैं नॉर्मली, अगर हम किसी ब्रांच की बात करें तो आप कस्टमर सर्विसिंग से स्टार्ट करते हैं, और अगर हम हेड ऑफिस लेवल की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। HR का सेपरेट से डिपार्टमेंट होता है, और रिटेल बैंकिंग का सेपरेट से डिपार्टमेंट होता है, कमर्शियल बैंकिंग का सेपरेट से होता है, कैश मैनेजमेंट का सेपरेट से होता है, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर ब्रांच लेवल की बात करते हैं तो ब्रांच में कस्टमर सर्विसेज डेस्क से स्टार्ट करवाते हैं। वहाँ पे बताया जाता है कि कस्टमर की इंपॉर्टेंस क्या है, कस्टमर को किस तरह से डील किया जाता है, कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के हवाले से कैसे कन्विंस किया जाता है। पहले कन्विंसिंग तो है जिससे सारे आपके गोल्स जो है वो अचीव होते हैं। अदरवाइज़ तमाम बैंक्स जो है वो सेम थिंग ही ऑफ़र करवा रहे होते हैं। सारे बैंक एक जैसे ही अकाउंट खोलते हैं जिसमें करंट और सेविंग अकाउंट्स होते हैं। तो हर बैंक अपने गोल्स जो है वो डिफरेंट वे से अचीव कर रहा होता है। कुछ की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, कुछ बिल्कुल लो होते हैं और कुछ मिड में होते हैं। ये सारी की सारी जो है वो आपकी कन्विंसिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह से कस्टमर को कन्विंस कर रहे होते हैं, किस तरह से अपने बैंक को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, और किस तरह से फिर लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। या फिर जो है आपके सामने 10 कस्टमर हैं और हम अगर अपने मोबाइल फ़ोन पे या किसी और टेलीफोनिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो दैट ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं है। हम कस्टमर के ऊपर फोकस करें, कस्टमर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टाइमली सॉल्व करें, यही हमारी सक्सेस है, यही हमारी मार्केटिंग है।
अगर हम किसी कस्टमर को अच्छे तरीके से सर्व करते हैं, देन वो कस्टमर मार्केट में जाके 100 लोगों को बताएगा कि जो सर्विसेज फार्म बैंक में हैं वो किसी दूसरे बैंक में नहीं है। इसी तरह से आपकी एक मार्केटिंग चेन जो है वो डेवलप होगी और लोग जो है आपके पास आएंगे, आपका बिज़नेस ग्रो करेगा और बिज़नेस की ग्रो के साथ आपकी भी ग्रोथ है डेफिनेटली। जी, कस्टमर ओरिएंटेशन यही चीज़ है कि कस्टमर को आप कितना अच्छा सर्व करती हैं और फिर कस्टमर को कितना अच्छा रिटेन करते हैं हम। तो बेसिकली एक अच्छा बैंकर वही होता है जो कस्टमर को रिटेन रखता है, ठीक है। अदरवाइज़ कस्टमर के पास बेशुमार ऑप्शन है, एक ही रोड के ऊपर 100 ब्रांचेज हैं डिफरेंट बैंक्स की, तो कस्टमर आपके पास ही क्यों आए? तो कस्टमर आपके पास तभी आएगा जब आप कस्टमर ओरिएंटेड होंगे, जब आप कस्टमर के प्रॉब्लम्स जो को टाइमली सॉल्व करेंगे, जब आप कस्टमर के सिंसियर होंगे और होनेस्टी आपके अंदर होगी। सर, अगर आपको जिंदगी एक दफ़ा फिर मौका दे तो आप क्या करना चाहेंगे? जी, मैं लेक्चरर बनना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।